the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 number. Sir, good afternoon. Shishir from Hindu Business Line. Sir, I have two questions. Can we expect a 2029 election on this One Nation, One Election? I'm talking about the Lok Sabha election. And my second question is, what would be the economic implication of this decision? There will be good positive implication, economic implication because of this decision, and we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it, then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। आई आस्क इन हिंदी। कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I am asking it? Now once you have elections at different time. तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, और देखिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी भी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब संसद से जब ये पास होगा तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। रामनाथ कोविंद कमेटी का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। अश्विनी वैष्णव इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, सवाल लेते हुए पत्रकारों के कि एक देश एक चुनाव होगा। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा, और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति, और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में
सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। नीरज, देखिए भले इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई हो कैबिनेट से, लेकिन अभी बाधाएं जरूर सामने आ सकती हैं। अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, क्या लग रहा है कि क्या इतना आसान होगा इससे कानून का अमली जामा पहनाना? देखिए बिल्कुल आसान तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल, खासकर विपक्ष के लगभग सभी दल इसके खिलाफ हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल नहीं है। एक साथ लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव फिजिबल नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 12 पॉलिटिकल पार्टियों ने इस पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव का सपोर्ट किया है, अपनी राय रखी है। अन्य पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत चल रही, कई स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत हुई है, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से राय ली गई है। तो इसलिए भारत सरकार का मानना है कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी भी जैसा अश्विनी वैष्णव ने अभी कहा कि ये 2 फेज में किया जाएगा। पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके बाद लोकल बॉडीज के, ग्राम पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव, इनके चुनाव सारे एक साथ कराए जाएंगे, वो भी 100 दिन के अंतराल में। लेकिन इस पूरे बिल को, इस पूरे रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अभी जब कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके बाद भी कॉमन परिचर्चा की जाएगी और इसके क्या आउटपुट्स होंगे, आउटकम्स होंगे, इस पर एक बार बात की जाएगी। तमाम संस्थाओं से, अलग अलग मंचों पर, अलग अलग वर्गों के बीच में इसको ले जाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, उनसे चर्चा इसको ले जाया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी और उसमें क्या कुछ निगेटिव, क्या कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी बात की जाएगी और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट ने मंजूरी दी है उस प्रस्ताव को, जो रिपोर्ट तैयार की थी, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रिपोर्ट बनाई गई थी,